अनपार्लियामेंट्री बोला गया है। ये देखकर और उन सारे शब्दों की सूची पढ़कर ये लगता है कि सरकार बखूबी जानती है कि उनके काम को कौन से शब्द परिभाषित करते हैं। ये देखकर लगता है कि सरकार बखूबी जानती है कि उनकी क्या क्या खूबियां हैं। और एक ऐसी अजीब सी लिस्ट सामने आई है जिसमें जुमला जीवी कहना अनपार्लियामेंट्री हो गया है, लेकिन आंदोलन जीवी कहना अनपार्लियामेंट्री नहीं हुआ। इनकॉम्पिटेंट, करप्ट, हिपोक्रेसी, अशेम्ड जैसे बेसिक अंग्रेजी के शब्द जो कहीं दूर दूर तक अनपार्लियामेंट्री नहीं करार दिए जा सकते, उन शब्दों को सरकार ने अनपार्लियामेंट्री कहकर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से निकाल दिया है और सांसदों को हिदायत दी है कि इन शब्दों का प्रयोग ना करें। अब तो कुछ इस प्रकार का आलम है कि हम इन शब्दों के विरोध में इस गैग ऑर्डर को सरकार की तानाशाही भी नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द तानाशाही भी इस अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज की लिस्ट में सरकार ने जोड़ दिया है। ये गैग ऑर्डर देखकर लगता है कि सरकार सच्चाई से डरती है, सच्चाई को नहीं फेस करना चाहती है। और जैसे एक बदसूरत व्यक्ति शीशे पे ब्लेम करता है, शीशे पे सारा कसूर ठहराता है, उसी तरीके से लगता है कि ये सरकार सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती है, सांसदों की भाषा पर ब्लेम ठोक रही है। और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस गैग ऑर्डर को इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सांसदों की अपनी जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको भी कहीं ना कहीं वायलेट करता है। क्या ओपोजिशन को टारगेट किया गया? इसमें लगता है कि ओपोजिशन की थोड़ी जो आवाज है उसको, देखिए, सारे वो शब्द जो ऑपोजिशन इस्तेमाल करती थी सरकार के कामों के बारे में, सरकार की परफॉर्मेंस को परिभाषित करने के लिए, सरकार को किसी एक उनके नीतिगत फैसले से अवगत कराने के लिए, उन सारे शब्दों को तो अनपार्लियामेंट्री कह दिया है। अब आप उन शब्दों का ही प्रयोग नहीं कर सकते, तो इससे बड़ा अनपार्लियामेंट्री एक्ट नहीं हो सकता। मैं कहूंगा कि ये जो अनपार्लियामेंट्री शब्दों की लिस्ट निकाली है, ये अपने आप में, ये जो एक्ट है, ये अपने आप में एक अनपार्लियामेंट्री एक्ट है, अनपार्डनेबल एक्ट है, और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस लिस्ट को वापस लेना चाहिए। Unparliamentary words. See, it is on one hand extremely heartening to know that the government of India is very well aware of the adjectives that aptly and accurately describe the performance of the government. But on the other hand, it is extremely disappointing that this gag order has been issued on parliamentarians, and all those words that the members of the opposition use to describe the policies of the government, to critique the policies and the functioning of the government, have been declared unparliamentary. I think this gag order, this list, revised list of unparliamentary words itself is an act of that must be termed unparliamentary. It is an unparliamentary, unpardonable act, and the government must reconsider this. By issuing such gag orders on members of parliament, it appears that the government of India is at some level fearful of the truth. They don't want to face the truth. And that is why they are issuing these gag orders and advising members of parliament from not using these words. And today a scenario has been created by virtue of this list whereby words like Jumla Jeevi have become unparliamentary, but words like Andolan Jeevi are still very much parliamentary. And basic words like incompetent, corrupt, ashamed, drama, hypocrisy that are used in day-to-day English language have also been declared unparliamentary. And if you go through the list, you will realize that while opposing this move of the government of India, members of parliament will not even be allowed to use the word dictatorship or dictatorial for describing this move of the government of India, simply because the word dictatorship and dictatorial also finds mention in this unparliamentary gag order or this so-called unparliamentary list of words.
So therefore, I appeal to the government of India and to the Lok Sabha and the Rajya Sabha Secretariat to kindly withdraw this list, re-examine this list, consult members of opposition from the members of parliament from the opposition also, and come up with a revised list. Such lists only go to show that this government is fearful of the truth. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।